ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ओल्ड स्कूल एजुकेशन ਦੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈਂਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਪੀਡਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਤੇ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੋਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨ ਕੈਨ ਰੋ 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇਨ 4 ਆਵਰਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਦੀ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਲੋ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਦੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵੱਲ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਨਦੀ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਦਾ ਮੈਨਸ ਰੋਇੰਗ ਰੇਟ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਦਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਯੂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆਪਣੀ ਆਦਮੀ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਇਨ ਵਾਟ ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਹੀ ਕਵਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜੀ ਨਦੀ ਕੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਟ ਜਾਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ। ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਤੇ ਨਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਯੂ ਹੈ ਤੇ ਨਦੀ ਦੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੋਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਯੂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ अपॉन टाइम। ठीक है, दूरी वटा समा हैगी अपनी डाउन स्ट्रीम। मैं प्लस क्यों करें मैं फिर दस रहा, क्योंकि नदी जी हैगी अपनी वो मदद करूगी अपनी बोट ਨੂੰ नीचे जाने वास्ते, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਬੋਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਨਦੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੋਨੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ u ਪਲੱਸ v ਮੈਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪॉन टाइम ਦੇ, ਤਾਂ u ਪਲੱਸ v ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਸਨੇ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 44 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ u ਪਲੱਸ v ਮਤਲਬ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 11 ਤੇ, ਤਾਂ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆ ਗਈ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम अपनी कितनी आ गई स्पीड कितनी आ गई 11 किलोमीटर पर आवर। तो उस तो बाद अपने यू की वैल्यू दे रखी है 8 किलोमीटर आ, आप यू की वैल्यू पुट कर दें तो अपने को वी की मतलब वाटर की स्पीड आ जाएगी, मतलब नदी की स्पीड आ जाएगी। तो यू किन्ने अपने को 8 है प्लस वी बराबर अपना 11 दे, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने 8 अपने इधर प्लस के इधर माइनस के आ जाऊगा, तो 3 किलोमीटर पर आवर अपने को की आ गई नदी की स्पीड। देखो अपने को बंदे की स्पीड भी आ गई, मतलब बोट की स्पीड भी आ गई, अपने को नदी की स्पीड भी आ गई। कहते देन फाइंड इन व्हाट टाइम विल ही कवर 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम का मतलब की है कि जेकर नदी मेरी इस डायरेक्शन जा रही है, देखो नदी अपनी जेकर इस डायरेक्शन जा रही है, ठीक है, अपनी बोट की है इस डायरेक्शन जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, तो नदी की करूगी अपनी बोट को रोकने की कोशिश करूगी, तो स्पीड की होगी घट जूगी। तो आप स्पीड की लिखांगे u माइनस वी, एक ही अपनी बोट की स्पीड मतलब आदमी की स्पीड, वी की अपनी नदी की स्पीड। नदी की स्पीड अपन रोक रही है तो करके बीच क्या गया माइनस आ गया, एक ही अपनी स्पीड है, स्पीड की बराबर होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम अपनी की होगी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उस तो बाद आप लिखांगे देखो u माइनस वी की आप वैल्यू पुट कर देना, क्योंकि अपने को u की वैल्यू भी हैगी है, v की वैल्यू भी हैगी है। u की वैल्यू आप कितनी कड्डी आ देखो, u की वैल्यू आप कितनी कड्डी 8 कड्डी है, तो 8 पुट कर देने। v की वैल्यू कितनी कड्डी 3 कड्डी है, तो 3 पुट कर देने। ठीक है, डिस्टेंस अपन दे रखा कि 25 किलोमीटर जाना है, तो 25 किलोमीटर भर देने। तो टाइम आप दसना है, तो टाइम टी आ जाऊगा।
ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 5, 5 ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ 25, 25 ਵਟਾ ਟੀ, ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਵਗ ਜੂਗਾ 5 ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਆ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਟੀ ਬਰਾਬਰ 25 ਵਟਾ 5, 5 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਆ ਜੂਗਾ 5 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ 5 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨ ਕੈਨ ਸਵਿਮ ਇਨ ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ ਐਟ 9.6 ਕਿਲੋਮੀटर पर आवर। देखो स्टिल वाटर की है, रुकिया हुआ पानी है, तो आदमी की कर रहा स्विम कर रहा है, आदमी तैरन लग रहा है। तो आदमी तैर रहा है खड़े पानी के विच, इसदा मतलब कल्ले आदमी की स्पीड है। तो आदमी की स्पीड आप हमेशा की मानते यू मानते हैं। बोट की स्पीड, आदमी की स्पीड, कोई भी चलती हुई स्पीड आप यू मननी है। तो यू कितने बराबर अपने 9.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू स्विम अपस्ट्रीम दैन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम ते जिन्ना टाइम लग रहा उस नालों दुगना टाइम उसनों लग रहा है ऊपर आन करके, क्योंकि देखो पानी रोकूगा नीचे आन करके तो पानी अपनी मदद करूगा, लेकिन ऊपर जान करके पानी अपन रोकूगा तो टाइम की लग रहा है अपना दुगना लग रहा है। तो दसो स्पीड की अपनी स्ट्रीम की, स्ट्रीम की हो गया अपना v, ठीक है। नदी की स्पीड हमेशा पर v मननी है, तो स्ट्रीम की हो गया अपना v हो गया, तो v की वैल्यू आप दसनी है। इस वास्ते हमेशा सुनूरे लिखेंगे कि दुगनी स्पीड है, तिगनी स्पीड है, 10 गुना स्पीड है, 11 गुना स्पीड है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के हमेशा तुम एक फार्मूला यूज करना है, वो है u वटे दे विच v इज इक्वल टू n+1 भाग दे विच n-1। आह जो फार्मूला लिख लो, हमेशा दुगनी स्पीड हो जाए, 4 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, 15 गुना हो जाए, 100 गुना हो जाए, बस आह फार्मूला तुम लगाना। तुहाडा जो आंसर है सैकेंडां दे विच निकल जूगा। इन्होंने की किया, जद अपनी जी उपरों तो लेके नीचे जा रही थी, मतलब u प्लस v थी, ठीक है, उसनों जो टाइम लग रहा था उस तो दुगना टाइम कदों लगूगा जब वो नीचे तो ऊपर जाऊगा, ठीक है। जब u माइनस v होगा तो अपना की लगेगा दुगना टाइम लगूगा। आप v की वैल्यू दसनी है, ठीक है। हुण अपने को की है u की वैल्यू हैगी है, तो n की है, और n की है जब क्या है दुगना, दुगना मतलब n की वैल्यू की अपनी 2 है। जो तिगना कह दें तो n की वैल्यू 3 है, जो कह दें 5 गुना तो n की वैल्यू की है 5 है, पर उड़े की है दुगना क्या है ट्वाइस क्या, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 2 आ जाएगी। तो आप करते हैं u की वैल्यू अपन देखिए 9.6, तो u की वैल्यू अपन 9.6 भर दें। v की वैल्यू कढ़नी है, दुगना क्या तो 2+1, तो इतने भी n की वैल्यू अपनी 2 आ जाएगी। तो 9.6 डिवाइड v, 2 च 1 जोड़िया 3, 2 च 1 माइनस किया 1, ठीक है। उधर v की वैल्यू आप कढ़ दें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। v अपना कि बराबर आ जाऊगा 9.6 बटे 3, 3 के पहाड़ से कट जाएंगे 3 9, 3 दूनी 6, तो 3 v की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 3.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये अपना आंसर होगा। बस ये याद बस ये रखियो कि जी आ है ना फार्मूला दुगना तिगना ये क्वेश्चन पाए जाते हैं, तो इसमें दूजे नोट करोगे थोड़ा जिहा लेंथी जाऊगा, पर जेकर इस फार्मूले में तुम याद रख लोगे तो तुम बहुत जल्दी कढ़ सकोगे। अगले क्वेश्चन पर जाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते in a fixed time a boy swims double the distance along the current that he swims against the current. If the speed of a current is 3 km per hour, the speed of the boy in still water is। देखो इस विच कहते फिक्स टाइम, सेम टाइम दे विच मान लो आ नदी अपनी बहन लग रही है, ठीक है, अपनी नदी जा रही है, जेकर बॉय सेम डायरेक्शन दे विच जांदा है तो सेम टाइम दे विच कुछ दूरी तय करूगा, ठीक है। नदी की बहा भी सेम है, लड़के का बहा भी सेम है, तो कुछ टाइम दे विच एक फिक्स टाइम दे विच वो कुछ दूरी तय करूगा। लेकिन जेकर अपनी नदी इस डायरेक्शन दे विच जा रही है, लेकिन बॉय जिहड़ा हैगा अपोजिट डायरेक्शन दे विच जा रहा है, तो उन्ने ही टाइम दे विच वो कुछ होर दूरी तय करूगा, ठीक है। पर जी सेम डायरेक्शन की दूरी है वो की होगी दुगनी होगी अपनी एज कंपेयर टू अपोजिट डायरेक्शन की जी दूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन कहना चाहता है, कहते इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पानी के बहा की जी स्पीड है वो कितनी देर की है 3 किलोमीटर पर आवर, तो v की वैल्यू अपन कितनी देर की है 3 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द बॉय इन स्टिल वाटर इज u की वैल्यू दसनी है, आप बॉय की स्पीड आप पूरे दसनी है। देखो इसमें मैं एक रेशो मैथड ना करके दिखाना कि इसमें आप रेशो मैथड ना भी कर सकते हैं। देखो डिस्टेंस की रेशो अपन दे रखी है अपनी डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ रहे हो भी नदी भी इस डायरेक्शन के जा रही है तो बोट भी सेम डायरेक्शन के जा रही है, तो उसमें कहेंगे डाउन स्ट्रीम। तो वो की है दुगनी है कि अपस्ट्रीम नालों, अपस्ट्रीम की है मतलब नदी इधर बह रही है तो अपनी जी बोट है वो की है अपोजिट डायरेक्शन के जा रही है, तो यह की अपनी 2:1 है, ठीक है। दुगनी है अपनी पहली नालों, मतलब अपस्ट्रीम नालों अपनी दुगनी है डाउन स्ट्रीम वाली, ठीक है। एक ही हो गया रेशो होगी। तो हमेशा उरों आप की कढ़ सकते हैं स्पीड की रेशो कढ़ सकते हैं। स्पीड की रेशो की होंगी है इसके सेम ही होंगी है, जो डिस्टेंस की रेशो होगी सेम हमेशा अपनी स्पीड की रेशो होगी। जेकर की है टाइम बराबर है, दोनों के की है टाइम फिक्स है, टाइम बराबर है, तो हमेशा रेशो भी की हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो स्पीड की रेशो की हो जाएगी 2:1 हो जाएगी, जेकर डिस्टेंस की रेशो की है 2:1 है, ठीक है। इतने तक समझ लग जाऊगा। हूँ अपन की देखिए
कहते स्पीड की है करंट की 3 किलोमीटर पर आवर है। करंट की स्पीड की आ जाएगी, देखो पहला उरे की है डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम का मतलब कहते यू प्लस वी है। उरे की अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब कहते यू माइनस वी है। अपन उरे की दे रखी है कली वी की वैल्यू दे रखी है। पहला आप की करेंगे यू ते वी नू वखरा कर लेंगे, मतलब यू ते वी की रेशो कर लेंगे, तो यू प्लस वी तो यू माइनस वी की रेशो दे रखी है, आप यू ते वी की रेशो कढ़नी है। तो किमें कढ़ी देंगे उसने एक हिंट दे देना, देखो यू प्लस वी यू माइनस वी की जी रेशो है वो अपनी दे रखी है 2:1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ u ਤੇ v ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ u ਤੇ v ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ u ਤੇ v ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜੂਗੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 3 ਤੇ 1। तो 3 ਤੇ 1 की आ गई अपनी u ਤੇ v ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 3/1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ, v ਕੀ ਆਪਣਾ 1 ਹੈ, 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 30 9, ਤਾਂ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਆਪਣੀ ਕਿਹਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜੂਗੀ u ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ u ਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਆ ਗਈ 9 ਕਿਲੋਮੀटर पर आवर, मतलब द स्पीड ऑफ द बॉय इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बस आ याद रखियो जेकर u ਤੇ v ਦੀ u माइनस u प्लस v ਤੇ u माइनस b ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ठीक है। मतलब अपस्ट्रीम ਤੇ डाउनस्ट्रीम ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ u ਤੇ v ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं स्विमर स्विम फ्रॉम अ पॉइंट A अगेंस्ट अ करंट फॉर 5 मिनट एंड देन स्विम बैकवर्ड इन फेवर ऑफ द करंट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट, ठीक है। पहला तो की करता मान लो थोड़ी नदी की इस डायरेक्शन के जा रही है, ठीक है। पहला तो 5 मिनट वो की है ए पॉइंट तो, ठीक है, ए पॉइंट तो 5 मिनट वास्ते अपोजिट डायरेक्शन के जाता है, ठीक है, अगेंस्ट आ करंट, करंट के विरुद्ध दिशा के जाता है किन्ने टाइम वास्ते 5 मिनट वास्ते, ठीक है। तो 5 मिनट वास्ते मान लो इधर तो लेके ए तो लेके 5 मिनट तक वो गया, तो उस तो बाद की करता बैकवर्ड जाता, मतलब ये की करता इस तो बाद वापस डायरेक्शन के जान लग जाता, ठीक है। वापस डायरेक्शन के जाता किन्ने टाइम के बाद 5 मिनट करके। तो 5 मिनट हूँ देखो नदी अपनी इधर को जा रही है, तो सेम टाइम मतलब 5 मिनट इधर गया, 5 मिनट हूँ नीचे को जाऊगा, तो ज़्यादा दूरी तय करूँगा क्योंकि नदी की होगी उसकी मदद करूँगी। मान लो उरे पहुँच गया तो 5 मिनट हूँ नीचे गया, ठीक है। पहले तो 5 मिनट की गया ऊपर गया, मतलब नदी अपनी नीचे को बह रही है, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन के 5 मिनट गया तो उरे पहुँच गए, उन्हें सोचा कि वापस जाने, तो नीचे को गया 5 मिनट वास्ते। तो 5 मिनट हूँ दूरी नदी के डायरेक्शन के जाऊगा तो की करूँगा ज़्यादा दूरी तय करूँगा। बस आ थोड़ी चीज़ें तुझे याद रखनी है। तो कितने पहुँच गया, मान लो पॉइंट बी ते पहुँच गया, देखो पॉइंट ए तो अपना उरी है ना, आ थी अपना पॉइंट ए, तो कितने पहुँच गया पॉइंट बी ते पहुँच गया अपना, ठीक है। इफ ए बी इज 100 मीटर, जो ए ते बी की जी दूरी है वो कितनी अपनी 100 मीटर है, ठीक है। 100 मीटर की दूरी अपनी ए तो लेके बी तक। तो स्पीड ऑफ द करंट इज, स्पीड ऑफ द करंट मतलब वी की वैल्यू आप दसनी है, ठीक है, और वी की वैल्यू दसनी है। देखो इसको करने वास्ते हम आप किवें करांगे, देखो 5 पहले 5 मिनट में देखो उरे की अपने को मीटर है, उरे की अपने मीटर की दूरी दी गई है, तो आप मिनट में भी करांगे सैकेंड के चेंज कर लाँगे। तो 5 मिनट सैकेंड के चेंज करने वास्ते आप 60 ਨਾਲ गुणा कर देंगे, तो 6 5 30 अपने को कितना आएगा 300 सैकेंड आ जाएंगे, ठीक है। तो 300 सैकेंड वो नीचे गया, तो 300 सैकेंड वो ऊपर गया, 5 मिनट ऊपर गया, 5 मिनट नीचे गया, मतलब 300 सैकेंड वो ऊपर गया तो 300 सैकेंड वो नीचे गया। तो दोनों के बीच फर्क की आ गया, दूरी का इन्ना फर्क आ गया, दूरी का फर्क मतलब 100 मीटर का फर्क आ गया दोनों के बीच। इतने तक समझा, देखो इतने तक तो बराबर थी, इतने तक तो दोनों की दूरी बराबर थी, लेकिन क्योंकि वो पानी की मदद नाल जा रहा थी, जो 100 मीटर ज़्यादा चल गया, ठीक है। दोनों का जी डिफरेंस है, जो फर्क आ रहा है कितना 100 मीटर आ रहा, ठीक है। जब वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब पानी की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब u प्लस वी, जब वो अपोजिट जा रहा है तो u माइनस वी, ठीक है। तो u प्लस वी, तो देखो उरे मैं लिखदा स्पीड की होंगी अपनी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन की टाइम होंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस की आ जाएगी, टाइम आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस की आ जाए अपने को स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस की होंगे अपने को स्पीड इंटू टाइम होंगे, ये तुहानूं पता होगा। तो आप की स्पीड कितनी अपने को, स्पीड हैगी है u प्लस वी अपने को स्पीड है, तो टाइम नाल आपां की करांगे गुणा कर देंगे, टाइम कितना 300 सेकेंड आ गए, ठीक है। तो हुण इहदे विच आपां माइनस कर देंगे, आपां u माइनस वी जिहड़ा कि अपनी अपोजिट डायरेक्शन दे विच गया, ये भी कितना टाइम लाया ने 300 सैकेंड लगाए ने, तो दोनों के विच जिहड़ा फर्क आया वो किन्ने दा आया अपना 100 मीटर का,
100 मीटर का फर्क आया। इतों आप की करेंगे हुण u ते v की आप वैल्यू कढ़ लेंगे, ठीक है। उधर u ते v की वैल्यू आप कंपेयर कर लेंगे। हुण इसमें आप सोल्व करते हैं, देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 300 u प्लस 300 v माइनस 300 u प्लस 300 v, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करके मैं प्लस का साइन लिया, बराबर अपना 100 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो 300 u के नाल 300 u कट जाना अपना, तो 300 v ते 300 v कितना आ गया अपने को 600 v बराबर अपना 100 दे आ जाएगा। तो v की वैल्यू उरे लिखना, v की वैल्यू की आ गई अपने को 100/6 मतलब 100/600 मतलब 1/6। तो v की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1/6 की है सैकेंड दे विच है, एक है सैकेंड सॉरी अपना की है मीटर पर सैकेंड दे विच है, मीटर पर सैकेंड दे विच है क्योंकि v है, ठीक है। एक ही अपनी स्पीड ऑफ करंट है, तो v की वैल्यू कितनी है 1/6 मीटर पर सैकेंड। तो इसमें किलोमीटर पर सैकेंड के चेंज करने वास्ते आप की करेंगे इसमें 18/5 ना गुणा कर देंगे, तो 6 × 18 तक कितना आ जाऊ अपने को v कितना आ जाऊ 3/5, जिसमें आप लिख सकते हैं 0.6, क्योंकि 6 5 30 होंगे, तो 0.6 अपना आंसर आ जाऊगा, ठीक है। उम्मीद है समझ लग गई होगी। अगले क्वेश्चन पे जाने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते बोट गो 6 किलोमीटर एन आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब कि पानी रुकिया, पानी खड़ा होया, तो कितना बोट जाती है 6 किलोमीटर जाती है किन्ने टाइम के घंटे के। तो बोट की स्पीड आप कि मैंशन करते हैं u नाल, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 किलोमीटर जाती है किन्ने टाइम के एक घंटे के, तो पर आवर अपना आ जाऊगा, ठीक है। 6 किलोमीटर पर आवर अपनी की आ जाएगी स्पीड आ जाएगी। कहते इट टेक्स थ्राइज एज मच टाइम इन गोइंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट एज कंपेयर टू डायरेक्शन ऑफ द करंट। कहते जेकर वो अपोजिट डायरेक्शन के जाऊगी तो कुछ टाइम लगूगी एज कंपेयर टू अपनी ज्यादा सेम डायरेक्शन के जाऊगी, तो अपोजिट डायरेक्शन के जो टाइम लग रहा है 3 गुना टाइम लग रहा है, क्योंकि पानी उसमें रोकूगा तो टाइम की लगूगा 3 गुना लगूगा, थ्राइस लगूगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं तुहानू हुणी करवा के हटा कि फार्मूले ना उस तरीके नाल आपां करांगे, तो की लगूगा 3 गुना टाइम लगूगा जब वो अपोजिट डायरेक्शन के जाती है एज कंपेयर टू जो सेम डायरेक्शन के जाती है। तो आप की फार्मूला यूज कर देंगे u/v इज इक्वल टू n+1 n-1। इतने की है n की है 3 गुना है, थ्राइज है, ठीक है। n की वैल्यू 3 आ जाऊगी। तो आप की दसनी हो रहा स्पीड ऑफ द करंट मतलब v की वैल्यू आप दसनी है, v की वैल्यू आप दसनी है, u की वैल्यू अपन दे रखी है, n की वैल्यू अपन दे रखी है, और आप v की वैल्यू कर लेंगे। u की वैल्यू कितनी है 6 है बटे v, n की अपने को 3+1 3-1, ठीक है। तो 6/v एक ना जो अपने 4/2 2 के पार्ट से कट्टिया जाऊगा अपना 2 ते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं v अपना इधर आ जाऊगा, तो 2 अपना नीचे चला जाऊगा, v बराबर है 6/2 मतलब कितना आ जाऊगा 3 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आ जाऊगा, ठीक है। 3 किलोमीटर पर आवर अपना किया गया आंसर आ गया, ठीक है। तो बस फार्मूला याद रखो, और कुछ ज्यादा कुछ करने की लोड़ नहीं, जिस कर तुहानू ये फार्मूला याद है तो ईजी तरीके नाल टाइम तुसीं सेव कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे जाने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते पर्सन कैन रो 7 सही 1/2, ठीक है। ये अपना एम है 7 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे के 7 सही 2 किलोमीटर जाता है, तो अपने को परसन है, ठीक है। परसन का मतलब u की स्पीड आ जाएगी, तो u की अपना 7/1/2 किलोमीटर पर आवर, 7 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर अपनी u की स्पीड आ जाएगी, ठीक है। स्टिल वाटर गया ता करके कली u की स्पीड है। और कहते फाइंड दैट इट टेक ट्वाइस द टाइम टू रो अपस्ट्रीम देन द टाइम टू रो डाउनस्ट्रीम। सेम टाइप का क्वेश्चन हुणे आप करके हटिया। तो u/v की बराबर आ जाऊ अपना n+1 बटे n-1। इतने u की स्पीड आपको दे रखी है, तो इन्होंने की है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो मतलब v की स्पीड आप कढ़नी है। तो u की स्पीड कितनी है, इनू आप सही करके लिखना 7 दूनी 14 तो 15 15/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या 15/2 किलोमीटर पर आवर, तो उरे v अपना नीचे है। n की वैल्यू क्या है की गया इन्होंने क्या ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब क्या 2 आ जाऊगा, 2+1 2-1, ठीक है। तो 15/2v इज इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने आप, ठीक है। तो अपने को आ जाऊगा 15 इज इक्वल टू 6v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 15/6। मैंने सोल्व कर देने 6 दूनी 12 कितना 6 5 30, तो v की वैल्यू आ गई 2/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2.5 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड आ जाएगी v की, ठीक है, मतलब स्ट्रीम की स्पीड अपने को आ जाएगी, ठीक है। इस आप सेम फार्मूला यूज करें। अगले क्वेश्चन से जाने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते मैन गोज डाउन स्ट्रीम विद अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न अप स्ट्रीम टू हैज ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर्स। तो क्वेश्चन की कहता मान लो ए पॉइंट तो आप बी पॉइंट वाल गए, बी पॉइंट की अपनी डेस्टिनेशन अपनी मंजिल है, आप ए पॉइंट तो बी पॉइंट वाल गए, तो फिर आप वापिस आ गए बी पॉइंट तो ए पॉइंट वाल,
पहले आप ए तो बी गए, फिर बी तो ए वापस आ गए। तो सारे प्रोसैस के जो आन जान का टोटल प्रोसैस थी, सारे प्रोसैस के अपन कितना टाइम लग्या, 5 घंटे लगे। ठीक है। तो उस तो बाद कहते इफ दी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, कहते बोट की स्पीड खड़े पानी के विच एंड स्ट्रीम मतलब नदी के बहाव की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर तो 4 किलोमीटर पर आवर रिस्पैक्टिवली। मतलब अपनी बोट की स्पीड कितनी आ जूगी, है 10 किलोमीटर पर आवर, तो अपनी पानी की मतलब अपनी नदी की स्पीड कितनी आ जूगी, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। हुण आपां नूं पता स्पीड की होंदी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। गति की होंदी है, अपनी दूरी बटा समा। तो इत्थों आप टाइम कढ लांगे, टाइम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड नीचे आ जाऊगा, तो टाइम की अपना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। टाइम की आ गया अपने को डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आप दूरी मान लेने, मतलब ए तो लेके बी तक का जी दूरी थी वो डी थी, तो डिस्टेंस टाइम की लगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड की नीचे जाने, पहले डिस्टेंस डी डिस्टेंस गया तो कितनी स्पीड से गया, u प्लस वी। देखो u की अपनी बोट की स्पीड तो v की अपनी नदी की स्पीड। तो u प्लस वी जिनी स्पीड नदी की होगी तो जिनी स्पीड बोट की होगी दोनों की हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो u प्लस वी। ठीक है। ये नीचे जाने की अपना टाइम लग गया, तो प्लस है जो उपर आने टाइम लग गया वो कि अपना u माइनस वी, क्योंकि नदी की अपन रोकूगी, अपनी बोट में रोकूगी, तो यह नीचे जाने का टाइम, ये उपर जाने का टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया, 5 घंटे हो गया। ठीक है। u तो v की वैल्यू अपन देखो, आप पुट कर लेंगे कितनी है, 10 से 4 कितना हो गया, 14, डी 10 से 4 गया कितना गया, 6 आ गया, बराबर कितना आ गया अपने 5 आ गया। ठीक है। हूँ आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम की ले देखो 14 तो 6 का आप एलसीएम ले लेंगे, 2 7 तो 3, 7 या 21 तो 2 42, तो एलसीएम कितना जो अपना 42। ठीक है। 42 तो इतने कितना जो अपने 3 डी, उड़े कितना जो अपने को 7 डी। ठीक है। क्योंकि 3 दूनी 6 बच गया कितना 7, तो 7 डी उपर आ गया, बराबर कितना जो 5 दे, तो 7 के 3 जोड़े कितना आ गया अपने को 10 डी बटे 42 बराबर अपना 5 दे, तो 5 के पहाड़े किन्ने कट जो 2 थे, 2 के पहाड़े किन्ना कट जो 21 थे, तो डिस्टेंस कितना आ गया अपने को 21 किलोमीटर। ठीक है। डिस्टेंस कितना आ गया अपने 21 किलोमीटर। ठीक है। इजी क्वेश्चन थी, समझ लग गया होगा। अगले क्वेश्चन से जाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जिहा लेंथी रहने वाला पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रख के इसमें समझने की कोशिश करो। मैं तुहानूं एक तरीका दसूंगा कि केड़ा फार्मूला यूज करके आप इसमें थोड़ा जिहा ईजी कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन की कहता, कैन स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड दे रखी है अपन, मतलब यू की वैल्यू दे रखी है खड़े पानी के 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब पानी की स्पीड, मतलब नदी की स्पीड दे रखी है अपन 4 किलोमीटर पर आवर, वी की वैल्यू दे रखी है अपन 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी डाउन स्ट्रीम, ए तो बी जाती है, मतलब मान लो पॉइंट ए उड़े है, ए तो की जाती है अपनी बी पॉइंट वाल जाती है, डाउन स्ट्रीम जाती है। डाउन स्ट्रीम का मतलब की है जिस डायरेक्शन के पानी जा रहा है उस डायरेक्शन के अपनी बोट जा रही है। ठीक है। वो की लेंदी है 36 मिनट घट लेंदी है, 36 मिनट लैस लेंदी है दैन द टाइम टेकन बाय द सेम बोट टू ट्रैवल फ्रॉम बी टू सी अप स्ट्रीम। जो बी तो सी वाल आती है, मतलब सी पॉइंट अपन उड़े है, तो बी तो सी जब वापिस आती है तो वह की करती है 36 मिनट ज़्यादा लेंदी है। बी तो सी वाला जो टाइम है 36 मिनट ज़्यादा एज कंपेयर टू ए टू बी, जो आप कह सकते हैं कि ए तो बी का जो टाइम है 36 मिनट लैस है। हूँ तुम कहोगे कि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, फिर 36 मिनट लैस क्यों लेंदी है, क्योंकि पानी भी सेम डायरेक्शन के जा रहा है तो बोट भी सेम डायरेक्शन के जा रही है, तो करके यह की है 36 मिनट की ले रही है, घट टाइम ले रही है। तो उस तो बाद कहते इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 किलोमीटर मोर दैन द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो जो ए तो बी का जो डिस्टेंस है वो की है 4 किलोमीटर ज़्यादा अपने बी तो सी नालों, मतलब जो आह डिस्टेंस है ना ये कि 4 किलोमीटर। ठीक है। ये अपने को डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। देखो हूँ आप की करेंगे, अपन को इत्थे तो लेके इत्थे तक का अपन डिस्टेंस पता है, ए तो लेके आप कह सकते हैं सी का अपन डिस्टेंस पता है कि 4 किलोमीटर है। ये चीज़ अपन पता है, जे आप ये कढ़ लीए तो अपने को कितना डिस्टेंस बचूगा, बस इन्ना डिस्टेंस रह जाऊगा, तो बराबर हो जाऊगा अपने को बी तो सी के नालों। ठीक है। तो अपने को जान का डिस्टेंस तो आन का डिस्टेंस की हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो करके आप इसमें ईजिली सोल्व कर पाओगे। पहले आप की करेंगे उन्हें टाइम कर लेना कि इस इन्नी दूरी तय करने वास्ते उसमें कितना टाइम लगे, जो टाइम आऊगा वो आप ये ऐड कर देंगे, ताकि अपना जो बराबर है डिस्टेंस भी बराबर हो जाए, तो आप कंपेयर कर सके टाइम में। देखो और जो नीचे गया तो की हो गया यू प्लस वी हो गया, क्योंकि नीचे जा रहे तो बोट से स्ट्रीम की जी स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना सॉरी डिस्टेंस कितना 4 तो टाइम आप कढ़ना u प्लस वी, यू अपने को 24 है, वी कितना अपने को 4 है, तो u प्लस वी कितना जो अपने को 24 से 4 28, 28 इज इक्वल टू 4 बटे टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 4 बटे 28, तो कट दें आप कितना जो 7, तो 1 बटे 7 अपने को घंटे के आ जाऊगा। हूँ आप इसमें करते हैं मिनट के चेंज कर देंगे, मिनट के चेंज करने वास्ते 60 गुणा कर देंगे, तो टाइम कितना आ गया अपने को
60/7 आ गया। मतलब इन्नी दूरी तय करने वास्ते आपां नूं कितना टाइम लगेगा, 60/7 मिनट लगणगे। ठीक है, जेकर हूँ उसकी दूरी घट गई, मतलब ए ते बी की दूरी घट गई तो वह जल्दी कवर करूगा, उरे तो लेके जो उरे तक का डिस्टेंस कवर जल्दी करूगा। तो जो टाइम जो इतने हूँ घट गया वो टाइम इस जुड़ जूगा। ठीक है, तो दोनों के जो डिस्टेंस है टाइम का 36 मिनट नहीं आना। हूँ कि आ जाऊगा टाइम के जो डिस्टेंस आया 36 मिनट प्लस 60/7 मिनट का एक्सट्रा टाइम जुड़ जूगा, क्योंकि हूँ ए तो बी का जो डिस्टेंस हो गया घट गया। ठीक है, हूँ क्यों करे भी सूँ पता लगूगा, पहले सूँ सोल्व कर लें। 7 का 42, 2 4 7 या 21, 21 ते 4 25 प्लस 60/7 कि आ गया अपने को 312/7। हूँ दोनों के विचों सेम डिस्टेंस जान का सेम डिस्टेंस आने का तो टाइम का डिफरेंस कि आ गया 312/7 आ गया। हूँ क्यों कराया मैंने इस तरीके ना, क्योंकि आप एक फार्मूला यूज कर सकते हैं डिस्टेंस का, स्पीड 1 गुना स्पीड 2, मतलब नीचे आने की स्पीड उपर आने की स्पीड, दोनों स्पीडों के जो डिफरेंस है तो गुना दोनों स्पीडों के टाइम का डिफरेंस जो कि ये आ रहा। ठीक है, इस जो डिस्टेंस वो बराबर होना चाहिए, तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस नीचे आने का जी स्पीड है कि अपनी 24 ते 4, ठीक है, कि 28, तो उपर आने की 24 चो 4 गए कि अपने को 20, क्योंकि अपने u प्लस वी तो u माइनस वी अपॉन 28 ते 20, मतलब S1 ते S2 के जो डिफरेंस है नीचे आ जाऊगा। तो 28 के अपने 20 गए तो कि अपने को 8 तो गुना टाइम कि अपने को 312/7। हूँ 312/7 की है अपना मिनट के तो इतने की है एक ही अपने को स्पीड की है किलोमीटर पर आर है, घंटे के तो इसमें भी आप घंटे चेंज करने वास्ते 1 सेट कर देंगे। तो हूँ आप कट दें 7 चौका 28, 4 के टेबल से बाजू 2 ते 2 के टेबल से कि बाजू 10 ते एक एंड कट जो अपना 6 ते 6 ते कट के 6 5 30 ते 6 5 30 6 दूनी 12 तो 52 किलोमीटर अपना आंसर आएगा। ठीक है, 52 किलोमीटर अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें आप जो क्वेश्चन करना है तो वो जो टाइम अपना बनूगा, क्योंकि अपने को डिस्टेंस भी है स्पीड भी है, तो टाइम जो है बस वो आप ऐड कर देना है अपने 36 मिनट के। बाकी आ सेम फार्मूला आप यूज करना है, फार्मूला सुन मैं पहला भी दस्या है। ठीक है, उम्मीद है समझ लग गई होगी। अगले क्वेश्चन पे जाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखो स्टिल वाटर मतलब खड़े पानी के जी आदमी की स्पीड है कि 6 किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब यू की वैल्यू अपने देखी है 6 किलोमीटर पर आवर। कहते इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज, मतलब पानी के बहाव की स्पीड मतलब वी की वैल्यू कितनी देखी है 2 किलोमीटर पर आवर देखी है। ही टेक 3 आवर मोर इन अपस्ट्रीम दैन इन डाउनस्ट्रीम, मतलब जो ऊपर को जाता है तो 3 घंटे ज्यादा लेंदा है एज कंपेयर टू जो नीचे आता है, जब डिस्टेंस की है बराबर है, दोनों केसां दे विच डिस्टेंस बराबर है, लेकिन ऊपर आने के 3 घंटे उसनूं ज्यादा लगणगे, क्योंकि पानी उसनूं रोकूगा। नीचे आने वाले पानी उसकी जान च मदद करूगा, ऊपर पानी रोकूगा, तां करके 3 घंटे का फर्क आ गया। नीचे आने ते ऊपर आने के टाइम का फर्क कितना आ गया 3 घंटे आ गया। ठीक है, हुण आपां की दसना डिस्टेंस दसना कि यह डिस्टेंस कितना दी है टोटल। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना दी यह आपां दसना। देखो इसनूं करन दा एक तरीका है, आपां रेशो मैथड नाल करदे हां। रेशो मैथड में आपां पहले भी 1-2 क्वेश्चन कर ले। तो स्पीड की जी रेशो मतलब डाउन स्ट्रीम तो अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब u प्लस वी, अपस्ट्रीम का मतलब u माइनस वी। ठीक है, तो u प्लस वी कि आ गया अपने को 6 ते 2 8 रेशो 6 के 2 गए कि आ जाऊगा अपने को 4। तो जेकर स्पीड की रेशो 8:4 है तो टाइम की रेशो की होंगी हमेशा अपोजिट होंगी, उल्टी होंगी है, क्योंकि डिस्टेंस की दोनों केसेस के बराबर है। तो इतने टाइम की रेशो की आ जाएगी 4:8 आ जाएगी। इसको कट दें तो 1:2 आ जाएगी। तो इस कहते टाइम के जो डिफरेंस है कि 3 घंटे है, तो इन्होंने दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है कि अपने को 3 घंटे है। तो ये 2 के 1 गया तो 1 की वैल्यू कितनी दे रही है अपने को 3 आवर दे रही है। ठीक है, दोनों के जो डिफरेंस कितना 3 घंटे का, तो मतलब 1 की वैल्यू जो 3 घंटे है तो उरे 1 की वैल्यू कितनी होगी 3 घंटे होगी, उरे 2 की वैल्यू कितनी होगी 6 घंटे होगी। ठीक है, तो अपने को टाइम आ गया, टाइम कितना आ गया 3 घंटे आ गया। स्पीड कितनी अपने को 8 है, तो अपने पता स्पीड की होंगी है डिस्टेंस अपॉन टाइम होंगी है। तो डिस्टेंस की होंगे टाइम इधर बाजू है, डिस्टेंस होंगे स्पीड इंटू टाइम होंगे। स्पीड अपने को आ गई कि 8 आ गई, टाइम कितना आ गया अपने को 3 आ गया, तो 8 से 24 तो 24 किलोमीटर अपना क्या जाऊगा डिस्टेंस आ जाऊगा। ठीक है, रेशो मैथड नाल भी तुसीं कर सकते हो। अगले क्वेश्चन से जाने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा होमवर्क है, इसमें आप करो तो कमेंट बॉक्स के लिखो। देखो पूरी ईमानदारी नाल इसनूं करने की कोशिश करो, थोड़ा लेंथी लगता पर पूरी कोशिश करो इसनूं सोल्व करने की। तो एक क्वेश्चन होर है, तो आ क्वेश्चन ईजी है, जो तुहानूं लेंथी लगता तो आ क्वेश्चन ईजी है, इसनूं करने की कोशिश कर सकते हो। तो कमेंट बॉक्स के आंसर लिखो, तो ये थोड़ा होमवर्क है। अगले क्वेश्चन से जाने। ओके, उरे अपनी ये वीडियो खत्म होती है, और लिखना भूल गया मैं, थैंक्स। ठीक है, स्टे टू। ठीक है, तो लास्ट तक थोड़ा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी मिलना है एक नवे इंटरेस्ट के नाल, तब तक ध्यान रखो, ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच।